गुजरात आप हैं आपके लव कोच रॉल मार्किन के साथ हैं टुडे आज मेरे हाथ में जो किताब है और वो शख्स जो मेरे साथ है ओ माय गॉड इनके बारे में जितना ज़्यादा कहूँगा उतना ही मेरे पॉडकास्ट का सारा जो वक्त है वो निकल जाएगा सो बट शी डेफिनेटली नीड्स अ लॉट ऑफ इंट्रोडक्शन जिसमें से मैं कुछ कुछ आपके सामने ज़रूर जाहिर करूँगा शी इज़ एन एक्टिविस्ट शी इज़ एन ऑथर अ फिल्म प्रोड्यूसर सुनीता कृष्णन और वन ऑफ द मोस्ट 150 फेयरलेस women of the world का खिताब इन्हें मिला है पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया है एंड she has been working for combating sex trafficking sex crime for the last 30 years god आज सुनीता हमारे साथ हैं with her new book आइए पहले कहते हैं you should never judge a book by its cover but अब हमारा कवर भी हमारे साथ है बुक भी साथ है एंड द बेस्ट पार्ट इज इनके ऑथर भी हमारे साथ है सो सुनीता lovely book that you've written, Survivor, Fighter, Crusader, Sunita Krishnan. And the title of the book is I Am What I Am. So, how do you justify this title first? Rahul, ऐसा था कि when I started writing the book, I wrote this book in 13 days. 13 days? 13 days. Wow. So when I started writing, I titled it something else. Like I put it and as what was the title? Being a Survivor. अच्छा. तो जब 13 दिन हो गए and I finished my book and then I just very casually mentioned this to a friend. I said, this is the title of my autobiography. This is my autobiography, by the way. As it kind of documents my 50 years, the first 50 years of my life. So उसने कहा नहीं यार, you're not a survivor, you're more than that. You're a fighter, you're that, this. And there were some other people sitting there. So everybody started discussing and everybody started writing कि भैया आप वो हो, ये हो. And suddenly it clicked. I don't want to be put in a dabba. I don't want to be put in any box, Whatever I am. I may be, for some, I may be God. For some other, I may be a demon. Whatever it is, I am what I am. That's it. And that's how the title came into being. Superb. So, Sunita, your journey from utter darkness to this bright light or these 50 years. और मुझे वो एक इंसिडेंट बताइए जहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी which actually led you towards fighting for this cause. Like anybody, like you or anybody else in this world, I'm a sum total of my choices. तो मैंने अपनी जिंदगी में जो चॉइस किया है और जो चॉइसेस किए हैं उसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ. तो मेरा पहला चॉइस था 15 साल की उम्र में when I was gang raped and I chose not to feel like a victim because there was this world around me which was looking at me like, oh my god, इसके साथ क्या हुआ है, or they wanted to push me out. There was another set of people in the same world who said कि मेरी गलती है. तो एक चारों तरह से एक माहौल बना था जहाँ पे people were looking how to fix me into something, and that is where it was a very important and very transformational choice I made, that I'm not a victim and I'm not to be ashamed of something that has happened to me. If there is somebody who should be ashamed, it should be the 8 men who did what they did to me, and they should be hiding their faces. They should be walking in shame. They should be the ones who are going to be socially ostracized, not me. That choice also led to the next choice. I said, I'm not only not going to accept me being a victim, henceforth, for whatever life that I have, 1 day, 2 day, 1 year, 35 years more, whatever, is going to be dedicated to fight this problem, fight the stigma, fight the violence, fight for the victims. That is what I dedicate my life to. So those are the initial choices that I made. And from those choices came a whole lot of journey to make those choices real. Because every choice comes with action. ना तभी मतलब आप कोई भी choice बनाते हो, जब तक उसमें एक एक्शन नहीं डालते हो या एक्टिविटी नहीं डालते हो, वो चॉइस रियल नहीं हो जाता है, मतलब साक्षात नहीं होता है. तो माय एंटायर नेक्स्ट 37 years has been to make those choices become real. So I'm practically living my dream, and I'm making it possible कि भाई जो लड़ाई मैंने 15 साल की उम्र में शुरू की है,
I'm making it happen in real life Hmm. through various activities. And one of the biggest activity that I did is setting up one of the largest organizations in the world that fights this problem. Sunita, you have been a survivor, you have been a fighter, you have been a crusader. But That's it. abhi bhi, That's the three that's tag that's words of that's my thing. this is, you You know, can when add we more words too. uh, but first, when as you said, you were a teenager when when this thing happened to you. अब अभी भी uh, you have been fighting against sex crimes and sex trafficking from the last so many years, and you have fought against the system as well. 100% बहुत से इम्प्रूवमेंट आए हैं, अभी भी हमें लगता है कि यार बहुत सारे लूप होल्स हैं इस सिस्टम में. आपको क्या लगता है इन 50 इयर्स में या इन 37 इयर्स में, सिंस यू हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट दिस, जब आप सिस्टम से फाइट करते हैं वो सबसे बड़ी फाइट होती है, तो कितने चेंजेस हैं जो आए हैं और कितने और लूप होल्स हैं हमारे अपने सिस्टम में जिन्हें कि अभी भी मेंट किया जाना बाकी है? कोई परफेक्ट सिस्टम तो होता नहीं है राहुल. हाँ, ये कहना बहुत ज़रूरी है कि 30 साल पहले क्या था और 30 साल के बाद अभी जो है, काफ़ी फ़र्क है. काफ़ी फ़र्क है इस समस्या को देखने के लेंस को ही. हम्म, यू नो जहाँ पे एक ज़माने में फॉर एग्ज़ाम्पल यू काइंड ऑफ डेइफाइड, आप तो शायद बॉर्न भी नहीं हुए होंगे उस टाइम हम्म, पे, जहाँ पर स्टॉकिंग वाज़ अ हीरोइक एक्ट. आप देखेंगे 1980s के फिल्म्स या तब जो मैं जब बड़ी हो रही थी उस टाइम की फिल्म आप देखोगे कि तो एक लड़का एक लड़की के पीछे भाग रहा है, कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहा है, कहीं भी लेके आए, दोज वे ग्रेट हीरोइक एक्ट. आज उसे हम स्टॉकिंग कहेंगे. ट्रू. ठीक है. और हम ये वर्ड भी इनफैक्ट ऑन रेडियो आल्सो, आई पुट इट ऑन कैमरा कि आज भी रेडियो पे वी डोंट यूज द टर्म स्टॉकिंग बिकॉज या हमें से एक नेगेटिव वर्ड के एग्जैक्टली तरीके से यूज एग्जैक्टली किया जाता है. पहले स्टॉकिंग यूज्ड टू बी अ कूल वर्ड, पर अब नहीं है. अब नहीं है. और ऐसे कई सारे छोटे छोटे मुद्दे हैं. सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल अब्यूज है, इवन वॉयरिज्म है कि आप किसी को देखते हो. ये सब बहुत कूल चीज़ें थी पहले. 30 साल के बाद ये सब कूल चीज़ें नहीं है, ये क्राइम हो गई हैं. 2013 के अमेंडमेंट के बाद आप देखेंगे इतना फ़र्क आया है कानून में और कानूनी व्यवस्था में कि जो गलत है इसको नॉर्मलाइज अब आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. पहले ज़माने में ना केवल आपने उसको नॉर्मलाइज किया, उसको डेफाई भी किया. सो मच सो दैट आपने कहा कि हीरोइज्म का एक इंडिकेटर है कि आप ये सब करो. एक लड़का बाइक में आके लड़कियों के पीछे घूम रहा है. आज उस तरह के फिल्म्स आपको कम मिलेंगे क्योंकि देयर हैज बीन अ शिफ्ट. कोई भी सिस्टम, मैंने जैसे कहा कि परफेक्ट नहीं होता है, लूप होल्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो लूप होल ये है कि जो सिस्टमिक रूप से आज हमारे पास है उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है. जहाँ तक कि एज एन एक्टिविस्ट एंड एन एडवोकेट मैं ये कहूँगी कि बहुत बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क और लीगल कॉम्पोनेंट्स जो भी हमारे पास लीगल क्लॉजेस हैं काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं. लेकिन द प्रॉब्लम इज़ नॉट दैट. बिटवीन द कप एंड द लिप देयर इज़ अ बिग गैप. सही से इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं. ठीक है. कहीं कानून इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं सही, लेकिन कहीं और कानूनी जो व्यवस्था है जैसे कोर्ट हैं, प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, यानी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो फेल होती है, कहीं पुलिस फेल होती है, कहीं जुडिशरी फेल होती है. तो कानून में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कानून को अमल करने की जो व्यवस्था है उसमें बहुत प्रॉब्लम है. एंड दैट कंटिन्यूज टू बिकम द बिगेस्ट गैप. If I would say even if 80 say 50% of our laws are correctly implemented, I would say 80% of the crime will come down. तो सुनीता, आई मुझे इतना शायद इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है, बट आप शायद फैक्ट्स ज़्यादा अच्छे से स्टेट कर पाएंगे. सो मेनी प्लेसेस स्टिल हैपेंस के सेक्सुअल हैरेसमेंट at workplaces, sexual harassment at homes or local areas, in fact rapes also. बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं किए जाते या घर वाले नहीं करते हैं.
या वो खुद इंडिविजुअल नहीं कर पाता है या करना नहीं चाहता है। सो उन केसेस में आप हाउ डू यू गो विद इट, अगर इंसान ही तैयार नहीं है? एंड दैट इज़ अ बिग बिग चैलेंज राहुल, क्योंकि अगर इंस क्योंकि एक कोई भी चीज़ रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट करने के साथ बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते ऑफ हैं एक कोर्स। इंसान के लिए। सो अगर उसका इमोशनल प्रिपेयर्डनेस नहीं है या मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उसको पुश नहीं कर सकते। नाम के वास्ते हम केस लगा देंगे, बट वो आगे नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो इंसान इमोशनली तैयार नहीं है इस प्रोसेस के साथ जाने के लिए। इवन कम से कम अगर हम कहते हैं कि बहुत ही स्पीडी रिस्पॉन्सेस होते हैं, होंगे एक उटोपिक समाज में सपोज करते हैं, तब भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हो, क्योंकि एक केस अगर सपोज आप पीड़ित हैं, आप बता रहे हो, तो जिस आपके बताने से केस नहीं होता है, इसकी छानबीन होनी है। यानी आपके बताने को 100 बार बताना पड़ेगा, ज़रूरी है वो, क्योंकि जो इन्फोर्सर है, लॉ इन्फोर्सर है, किसी एक पीड़ित की बात के ऊपर किसी और इंसान को जाके जेल में नहीं डाल सकता है। तो हर बार जब हम आपसे पूछते हैं कि क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ आपके साथ, आप, क्योंकि आप पीड़ित हो और क्योंकि आपके अंदर इमोशनली वो ट्रॉमा ज़्यादा है, आपको वो इंट्रूशन लगता है, ठीक है? और जितना हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और सवाल जवाब से करते हैं, उतना आप अंदर ही अंदर सिकुड़ जाते हो। तो एक किसी भी रिपोर्ट करने के पर्सन को जब समझना ज़रूरी है कि ये इमोशनल प्रिपेयर्डनेस ज़रूरी है, क्योंकि जितना हक आपका है जस्टिस के लिए, उतना ही हक उस इंसान का भी है अपने अपने नाम को सही करने के लिए। तो वो अपनी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए एक लॉ इन्फोर्सर शायद आपसे 100 बार वही सवाल पूछे। बिल्कुल। उसके बाद जब आपके सवाल से उसके आंसर्स कुछ आ जाएँगे, फिर वो अपनी छानबीन करेंगे कि ये इन एक-एक बात जो कहा है, इसका तात्विक यानी एविडेंस कहाँ है? Because the court does not go by statement. स्टेटमेंट एक वेरीफाइबल होना चाहिए। अगर आपने कहा कि हम 10 बजे यहाँ गए हैं, तो 10 बजे गए हैं इसका उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होना तो जरूरी। बहुत सारी चीज़ें प्रूफों पे, तो फिर वो छानबीन होती है, तो उसके लिए समय लगता है, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है। थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो प्रोसेस है कि दोनों को इक्वल मौका मिलना चाहिए। अगर आप इमोशनली प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो ये प्रोसेस आपके लिए भारी हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं, हम नहीं कर पाएँगे, कितनी बार पूछ रहे हैं, क्यों बार-बार पूछ रहे हैं, ठीक है? अब जितनी भी हम कानून व्यवस्था को अच्छा करें, इस प्रोसेस से को तो कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। फिर फाइनली आप कोर्ट की तरफ आएँगे, ठीक है? कोर्ट में जितना हक आपको है न्याय पाने के लिए, उतना ही हक उसको है कि वो ना जेल जाएँ। तो उसके जो लोग हैं, जो उसके वकील हैं, वो आपको 100 तरह से काटेंगे, ठीक है? उनकी ज़रूरत क्या है कि आपको झूठा साबित करें, ऑफ कोर्स। आपको ख़त्म करें, ठीक है? आपको ख़त्म करने में ही उनके क्लाइंट की जीतने की संभावना है। सो ये एक प्रोसेस समझना एक पीड़ित के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द जर्नी फॉर जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लॉ, इट इज़ ऑल्सो द एंटायर प्रोसेसेस दैट मेक्स इट हैपन। तो हमारे जैसे लोग जो काम करते हैं राहुल, वो है इस पीड़ित को तैयार करते हैं इस प्रोसेस के लिए कि भाई आपको लड़ना है, आपको न्याय मिलना चाहिए, और उसमें आप अकेले नहीं हो। हर स्टेप में आपका काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप उसे तैयार अकेले करने नहीं कर का। रहे। एवरी स्टेप वी आर विद यू, एंड एवरी स्टेप वी आर गोइंग टू टेल यू दैट यू आर नॉट अलोन। तो वो प्रिपेयर्डनेस जो समाज को देना चाहिए, हमारे जैसे लोग पीड़ितों को देते हैं। मुझे मुझे 100% पता है कि इस 13 दिन जो आपने इस किताब को लिखने में लगाए हैं, ऑफ कोर्स ये आपकी पूरी किताब आपकी पूरी ज़िंदगी को सम अप डेफिनिटली नहीं कर पाएगी। आई थिंक इसके 3-4 वॉल्यूम्स और निकालने पड़ेंगे। इतनी हज़ारों लाखों जानें जिनको आपने बचाया, जिनकी दुआएँ आपने ली,
कोई एक ऐसा इंसिडेंट या कोई एक ऐसा केस जहाँ पे जिसको आप जब भी याद करती हैं आपको लगता है कि यार ये ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी सक्सेस है कि मैंने इसको बचाया। मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हर हर बट विक्टिम। कोई एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हों और वहाँ से आपको फिर सफलता मिली हो? अगेन हम लोग जब एक एक केस को हुँ, अलग से लेते हैं तो इस तरह का बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक केस मुझे याद है जो मुझे काफ़ी अ, मुझे 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 काफ़ी झंझोड़ा था उसने। हम लोग चंद्रपुर गए थे। महाराष्ट्र में एक प्रांत है चंद्रपुर, जहाँ पे रेस्क्यू करने गए थे। तो रेस्क्यू जो होता है वो ये इज़ इट लाइक सेक्स ट्रैफिकिंग या सेक्स सेक्स क्राइम? ट्रैफिकिंग का ओके, केस ओके, था। ओके। तो रेड लाइट एरिया में ब्रॉथल्स थे, और एक रेस्क्यू ही एक बहुत ही जेम्स बॉन्ड एक्टिविटी होता है, हुँ, क्योंकि हम लोग जैसे ही घुसते हैं मेन स्विच ऑफ कर देते हैं वो लोग, एंड देन फिर अंधेरे में हम लोग को ढूंढना पड़ता हुँ, है। लड़कियों को बेसमेंट में छुपाया जाता है, ऊपर फॉल सीलिंग्स के अंदर छुपाया जाता है, या कबोर्ड्स में छुपाया जाता है, या कमोड्स में छुपाया जाता है, या अजीब अजीब तरह के अलमारे क्रिएट किए जाते हैं, डब्बे क्रिएट किए जाते हैं, सबके अंदर डाला जाता है। तो अंधेरे में हमको पता नहीं है कहाँ से हमारा कोई ना कोई अटैक करेगा, मतलब कहीं से भी एक मुक्का लग सकता है मुँह पे, हुँ, क्योंकि अंधेरा है, हुँ, अपने हाथ में टॉर्च लाइट है, तो प्रैक्टिकली वी आर रेंग रहे हैं फ्लोर में। हम लोग ऐसे रेंगते हैं क्योंकि कहीं न कहीं कोई क्रेविस मिल जाएगा, जिसको खोल सकते हैं। कोई वो कर रहा है, तो कोई दीवार को रेंग रहा है टू ओपन इट। तो एक काफ़ी एक क्या बोलते हैं ना, एक हाई एड्रेनालिन, बहुत बहुत हेवी डोसेज हुँ, ऑफ जेम्स बॉन्ड एक्टिविटी चलता है इसमें। तो काफ़ी मेहनत करके हम लोग रेस्क्यू कर रहे थे। करीबन हमने 40 औरतों को 40 औरतें और लड़कियों को बचाया, बाहर निकाला। हुँ, तो जब बचाते हैं तो यूजुअली वी क्या कम विथ ऑल प्रिपेयर्ड, बस रहता है, सब हुँ, कुछ रहता है। तो इनको धड़ 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 करके हम लोग जल्दी गाड़ी में बस में बैठा रहे थे, पुलिस भी अपना काम कर रही थी। तब तक ऑलरेडी पब्लिक आ चुकी थी बाहर, जो इर्द गिर्द के हुँ, लोग थे, एंड एवरीथिंग वाज बिकमिंग अ केओस। पुलिस तो ऑलरेडी थी, और ये दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ मॉब कमिंग हुँ, आउटसाइड, एंड मीडिया भी आ चुकी थी, तो वो लोग भी वहाँ पे हुँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काइंड ऑफ स्टफ हो रहा था। हम लोग मतलब भाग रहे हैं, एंड देन वन ऑफ माय टीम मेंबर सेज कि मैम, एक लड़की छूट गई है। तो आई पुश्ड एवरीबॉडी इन, और मैं और नूरजहान बोल के ये लड़की है, एंड द स्टोरी इज टोल्ड हुँ, इन द बुक। हम लोग वापस भागे, और ये 13-14 साल की बच्ची थी, और उसने एक वो बेड के अंदर छुपी हुई थी, और बेड के नीचे छुपी हुई थी, और हमने जाके उसको बाहर खींचा, एंड शी हेल्ड ऑन टू द बेड पोस्ट। उसने ऐसे जकड़ के उस पे हुँ, बेड पोस्ट को पकड़ लिया, और कहती नहीं आऊंगी मैं। इट वॉज गेटिंग रियली ऑन आवर नर्व्स कि क्या हो रहा है यहाँ पे। 40 को अंदर कर दिया है बस में। पुलिस इज नाउ एंशियस कि निकले निकले निकले, हुँ, क्योंकि पब्लिक आ चुकी है एंड मीडिया आ गई है। तो हुँ, मतलब इट्स बिकमिंग अ रियली अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट। हम लोग एक सेकेंड रुक नहीं सकते, और ये लड़की आ रही नहीं है, एंड फॉर मी आई वाज लाइक स्टम्प्ड। मैं कुछ भी बोलूं, इट इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग टू द गर्ल। मेरे साथ जो मेरी मेरी रेस्क्यू टीम लीडर हैं, शी इज़ अ सर्वाइवर herself. शी इज़ अ सर्वाइवर लीडर हु इज़ इन द रेस्क्यू टीम एज अ रेस्क्यू लीडर। हुँ, तो मैंने कहा नूर, बात करो उससे, एंड शी केम डाउन, एंड सर्वाइवर टू विक्टिम कॉन्वर्जेशन हुई, एंड शी केम आउट, समहाउ केम आउट। फिर वो रोना शुरू की, बोलती है कि मेरे बच्चे को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, और मेरे बच्चे के नाम बिना मैं जाऊंगी नहीं। एंड देन वी हैड टू जस्ट टेल द पुलिस कि आप ये 40 को लेके चले जाओ, इसका बच्चा फंसा हुआ है, वी विल डू अ सेकेंड राउंड। सो एक एसआई को छोड़ दिया हमारे साथ, हम 3-4 लोग इस बच्चे को ढूंढने में लगे। आफ्टर अराउंड 45 मिनट्स ऑफ सर्च, वी फाउंड द चाइल्ड इन अ वाटर टैंक, हुँ, पानी के अंदर था।
हम लोग, बच्चा जिंदा था, ब्लू कलर, जिंदा, उसको हमने उठाया, भागे हम लोग। एंड कुछ देखने का नहीं, बस ये लड़की, ये भीड़, इस सब के बीच में किसी एक गाड़ी को अरेंज करके रखा होता पुलिस ने, उसमें घुसे, सीधे हॉस्पिटल गए। एंड फॉर मी इट वाज टू केओटिक कि अब मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में भी नहीं खड़ी हो सकती हूँ। नूर को मैंने वहाँ छोड़ा और वापस आई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वाज लाइक क्यूरियस कि क्या हुआ, बच्ची ठीक है कि नहीं। एंड आई केम बैक एंड आई वेंट इनसाइड, दे वर स्टिल इन द इमरजेंसी। और मैंने बच्चे को उठाया, मैंने देखा कि उसके पूरे बॉडी में बाइट मार्क्स हैं, ठीक है। और जब मैं वही डॉक्टर को पूछ रही थी क्या है ये बाइट मार्क्स, तो मैम इट लुक्स लाइक डॉग बाइट। मैं तैश में आ गई, मैंने इस लड़की को बुलाया, क्या है ये, बच्चे को ऐसे कैसे रखा है। देन शी टेल्स मी कि ब्रॉथल कीपर ने इसके बच्चे को पकड़ के रखा था, and if she would not go to a customer, the brothel keeper would make the dog bite her child. So every time the dog bit the child, this girl will go to a customer. Okay. I don't know, Rahul, how I mean, I can't even, you know, describe to you what I felt then, कि how कितना inhuman हो सकता है एक इंसान, बिस्टैलिटी कितनी हद तक जा सकती है एक 6 महीने के बच्चे के साथ आपस में। आज जब मैं उस बच्चे को देखती हूँ, he's just finished his 12th standard Wow. and he's got in engineering, it fills me with कि इस बच्चे ने सब कुछ देख लिया। At the age of 6 months, he went through the worst of bestiality, and today he is just qualified for his engineering, Wow. and for the mother and the son, it is मतलब उन दोनों को मैं देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अगर इन्होंने इतना कुछ सह के भी, if they have been able to embrace hope and possibility, तो कुछ भी दुनिया में possible है, you know. So there are millions of such stories of hope and possibilities, which is there in this book. Yes, हमें, I think it's probably some fault of the media as well, कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी भी ऐसे इश्यूज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती है, जिस वजह से शायद हमारे तक ये बात पहुंचती भी नहीं है कि सेक्स ट्रैफिकिंग इंडिया में इनके अभी इनका रेट क्या है, इनका फैक्ट्स क्या है, और ये हमें तो ऐसा ही लगता है कि शायद ये अब होती भी नहीं है। बट यू नो ओपनिंग आवर आईज टू इट, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपने इस एरिया में काम करना शुरू किया था, टू दिस डेट, हाउ हैव थिंग्स इम्प्रूव्ड, और क्या अभी भी सेक्स ट्रैफिकिंग होती है? बिकॉज वी नेवर हियर इट और सी इट इन द न्यूज़। सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, राहुल। द प्रॉब्लम इज नॉट द न्यूज़, प्रॉब्लम इज हम क्या सुनना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं। देयर आर इनफ रिपोर्टिंग हैपनिंग ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग, लेकिन ज़्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते, बिकॉज इट्स टू हैवी और समथिंग दैट डजंट इफेक्ट मी, व्हाई शुड आई लिसन। शायद अगर मोदी जी कोई टैक्स में बढ़ा रहे हैं तो सब लोग सुनेंगे, या कोई और चीज़ कर रहे होंगे, या इवन अंबानी की कहानी से हम लोग उनकी शादी देखने में, क्योंकि दीज आर लाइट, हमको अच्छा लगता है। पर समथिंग विच इज़ वेरी पेनफुल एंड समथिंग विच इज़ थिंग हम भी सिलेक्टिवली सुनना नहीं चाहते हैं। तो शायद इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडियाज़ में या काफ़ी सारे जो पॉपुलर मीडिया है इसको टच नहीं करती है। पर ये ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्टेड नहीं है, काफ़ी रिपोर्टेड है। हालांकि द प्रॉब्लम हैज़ ओनली वर्सनड ओवर द ईयर्स। 30 साल पहले हम सेक्स ट्रैफिकिंग का जो रूप देखते थे और आज 2024 में जो रूप देख रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव है, क्योंकि नाउ द प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज्ड 100-fold थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। तो पहले तो एटलीस्ट हमें दिखता था कि ये बंदा या ये बंदी करवा रही है, कर रही है, या इसने इसको धोखा दिया और उसको बेच दिया। आज विद ऑनलाइन ग्रूमिंग थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेंजर्स एंड इंस्टा है, फेसबुक है,
टिंडर है, बम्बल है, आप यू नेम इट, यू हैव इट, यू नो। इन सब चीज़ों की वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि आपको उतना गाँव-गाँव ढूँढ के किसी को ट्रैप करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ बैठे-बैठे ट्रैप करो, आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है। दूसरा जो चेंज आया है कि पहले जो प्रॉब्लम था, वो लार्जली एक पॉवर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम था। आज जो प्रॉब्लम है हैज़ नथिंग टू डू विद पॉवर्टी। द मोस्ट रिच, मोस्ट मिडल क्लास, मोस्ट इकोनॉमिकली प्रिविलेज्ड फैमिली से भी अगर इमोशनली वल्नरेबल है, तो ईज़िली ट्रैप हो सकता है। कितनी हज़ारों लड़कियों को थ्रू यू नो सोशल मीडिया स्पेसेस लाइक इंस्टा एंड फेसबुक और डेटिंग साइट्स लाइक टिंडर एंड ऑल, इतने आराम से ग्रूम किया जाता है प्यार के नाम पे, और फिर उन्हें यू नो स्लोली ब्लैकमेल करके या इंटिमिडेट करके या सेक्सटॉर्शन करके उन्हें इस फील्ड्स में लाया जाता है। तो 2024 की दुनिया में एक अजीब तरह का इक्वलाइजर आ गया है, जहाँ पे कोई भी सेक्स ट्रैफिक्ड हो सकता है। ये So is 30 साल this पहले नहीं था। जैसे उस जमाने में अगर वैसे कार्टेल्स होती थी या ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स होती थी? आज भी है, अच्छा। आज भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड है, उतना ही वेल नेटवर्क्ड है। द प्रॉब्लम इज उतना ही कंसील्ड है। तो हाउ डू यू कैच देम? आप आपके लिए तो तो ये बहुत ज्यादा अब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है अभी, क्योंकि विक्टिम खुद नहीं बता पाती है ऑफ कोर्स। कि कौन है ये बंदा, क्योंकि शायद एक फेक प्रोफाइल के साथ कॉन्वर्जेशन कर रही होंगी या एक फेक आइडेंटिटी के पर्सन के साथ कर रही होंगी। तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कि ट्रैक करने के लिए कि कौन पीछे है। एंड अभी नए नए जो तरीके निकले हैं, लाइक यू कैन अक्वायर अ लॉट ऑफ फॉल्स फेक सिम कार्ड्स, यू नो, you can also acquire a lot of mule accounts। तो पहले जैसा होता था कि अगर मनी ट्रेल से भी हम लोग पता लगा सकते किसके किसके पास पैसा गया, कैसे गया, उससे भी आज वो भी डिफिकल्ट हो गया है। सो यस, इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर चैलेंजिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। What is the one of the biggest challenges that you and your organization faces while tackling sex crime and sex trafficking? द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। अच्छा। समाज की जो सोच है, लोगों की जो सोच है, all these things that we are talking about is good as long as it's a movie or a book. It's not so good when it comes to our own thing. We don't want to accept these people back. We don't want to give them a new life. We don't want to give them jobs. We don't want to take them as हमारी घर की बहू. We don't want to accept them as our own. So long as it's a story, it's fine. You know, that attitude, you know. And you started off by saying, we don't know. It's not we don't know. We don't want to know. The apathy of the society, you know, and the silence of the society. बात ही नहीं करना चाहते, ठीक है। किसी ने कहा कि हमने आपकी किताब पढ़ ली, खरीद ली, but I'm so scared to read it. You know, you think hiding it under the carpet will solve the problem? Yep. You know, because I would urge everybody to read this book, not because the problem is stated there, but it is also talking about the solution, where each one of us can become part of, you know. समाज जो आज मेरे साथ कर रहा है, through their silence, through their apathy and their inaction, can be changed by reading about what are the possible ways. कि हाँ चलो, I Rahul, I want to do something. So what do I do? This book will give you some of the answers. कि what can be done? You know, it is possible for everybody to change. And for me, something like this today, Rahul, having a conversation with you on your podcast itself is change, because you're breaking the silence. So my next question was going to be this only, कि all our listeners, all our viewers, if we want to be a part of what you are doing, how can we do it actively or inactively? How can we participate in such an amazing movement that you've created? I think first thing would be to read the book. To read the so book, please definitely. buy the Yes. book. So, well, shameless marketing of the book. But having said that, I would shamelessly market it because it's
also a journey of possibilities. क्या कर सकता है एक आम इंसान? Because breaking the silence wherever we are, in our families, using our social media, using whatever access. आज की तारीख में everybody has a voice thanks to technology. So the technology that can harm you can be used to change things. So please understand the problem, talk about the problem. That is one act that you can do. But when you have the preparedness, when you have the skills, when you have the resources, emotional, physical, skill wise, try to give that. हमारे जैसे लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे साथ काम करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, डर के मारे, you know. So people who can teach, please come to us to teach. People who can dance, please come over, teach dance to our children. So, make us part of you. अभी आपने मुझे अलग करके एक साइड में लगा दिया, ठीक है, और मेरा सबसे बड़ा डर ये है कि मुझे पद्मश्री आज दे दिया, कल मुझे इतना बड़ा बड़ा बना के, हीरो बना के, भगवान बना के मेरे फोटो में बस गार्लैंड डालते डालते आप मुझे उतना ही दूर मत कर देना. All that I'm telling through my book and through this conversation is, it is possible for any human being to do this. There's nothing heroic about it. And what is important is to find that space कि हाँ, मेरे हाथ में ये है, मेरा acumen ये है, मेरा skill ये है, और मैं ये दे सकता हूँ. वो कुछ भी हो सकता है. Around 2015, you started a campaign called Shame the Rapist, जी. which is in itself very self-explanatory. उस कैंपेन के बारे में थोड़ा बताइए. हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड इट, कितना सक्सेसफुल वो रहा और अभी उसका कितना रेलेवेंस है? रेलेवेंस तो कभी गया नहीं. रेलेवेंट टुडे एज मच एज इट वाज इन 2015. एक वाहियात सिचुएशन से कैंपेन ट्रिगर हुआ. दो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी मैन जो मेरे काफ़ी सारे कैंपेन्स में भाग लेते हैं, सडनली मुझे कॉल किया. उन्होंने कहा कि मैम, हमें कुछ वीडियोस मिले हैं हमारे व्हाट्सएप में, कि आप देखेंगे. तो मैंने कहा यार, ये वीडियो देखना तो मेरे काम का नहीं है. तो बोले कि मैम प्लीज़ आप देख लो, पर भेज दो फिर. तो मैंने जब व्हाट्सएप में वो 2 वीडियोस देखे, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी. एक वीडियो एक 12 साल की बच्ची का बलात्कार हो रहा था, अ गैंग रेप. What caught my eyes was not the rape, the expression on those 8 men. उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, जो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं. They are asking कैमरा वाले के साथ, मेरा लो, and smiling and flaunting. That really shook me. मैंने कहा, आज हम एक ऐसे पीढ़ी से गुजर रहे हैं जहाँ आप गलत करते हो और गलत को रिकॉर्ड करते हो और फिर तुम उसको फ्लॉन्ट करते हो. क्या कहना चाह रहे हो आप समाज से, दुनिया से क्या कहना चाह रहे हो कि मैं ये सब कुछ करूँगा? You can't do a damn about it. I wanted to break that damn look on their faces. तो अगले 12 घंटे के अंदर मैंने कैंपेन शुरू की. मैंने इसी वीडियोस को लिया, मैंने विक्टिम्स के फेसेस को कम्प्लीटली ब्लर करके इन चेहरों को हाईलाइट करते हुए मैंने ये वीडियोस सोशल मीडिया में पोस्ट किया. ये लोग भी यहाँ वहाँ पोस्ट कर रहे थे ना, तो मैंने भी पोस्ट किया. और मैंने इस मैसेज के साथ पोस्ट किया कि भाई, ये बलात्कारी हैं और इनका अता पता नहीं है, कोई इनको पहचान जाए तो मुझे बता दो प्लीज़. आई विल फाइल क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट हिम. काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही ये कैंपेन. जैसे ही शुरू हुई, मेरे ऑफिसेस पे अटैक हुए, मेरी गाड़ी पे अटैक हुआ, एंड लार्ज स्केल अटैक चला हमारे ऊपर. पर मेरा जो उस समय का मूड था, अटैक देखने का तो नहीं था. वो अपना चलते रहे, उनका अपना काम करते रहे, मेरा काम मैं करती रही. तो मैं पहले गवर्नमेंट के पास पहुंची. उन्होंने बहुत प्यार से मेरा लेटर वेटर लिया, लेकिन मैं दिन गिन रही थी, घंटे गिन रही थी, कुछ हो रहा नहीं है. 10 दिन मैंने जब वेट किया, कुछ हुआ नहीं. आई वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. और जब मैं सुप्रीम कोर्ट गई, आई वॉज वेरी हैप्पी दैट द चीफ जस्टिस नॉट ओनली टुक माई लेटर, ही कन्वर्टेड इट इनटू अ पिटीशन.
उस पिटिशन ने देश का नक्शा बदला। आज साइबर क्राइम के स्पेस में अगर एक साइबर क्राइम पोर्टल है जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो, वो हमारे केस की वजह से आया। आज इंटरमीडियरीज हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, इनके ऊपर गाइडलाइंस जमे हैं कि भैया आप भी अकाउंटेबल हो, क्या कंटेंट आपके इसमें आता है, हमारा केस जिम्मेदार है। आज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर नामक एक विंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर अगर बनाई गई है, वो भी हमारे केस की वजह से आया है। तो एक साइबर क्राइम्स का जो लैंडस्केप है, इसको एड्रेस करने का एक माध्यम बना मेरा ये कैंपेन। एंड आज भी ये इतना ही रेलेवेंट है क्योंकि आज भी रेपिस्ट को डराया नहीं है। इम्प्यूनिटी इज स्टिल हाई एंड उस इम्प्यूनिटी की वजह कई तरह से हम लोग ही हैं। ये हम लोगों ने उनको एक ऐसा माहौल दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, हम सब भोगेंगे, हम सुनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके। सुनीता, we'll talk about the book. I am what I am. आपका मेमोयर है, आपकी बायोग्राफी है, आप ही के साथ जो हुआ है, ऑटोबायोग्राफी है। आपकी ऑटोबायोग्राफी है, आपके साथ जो हुआ है, आपने जो इन दशकों में जो जो एक्सपीरियंस किया है और जो बदलाव आप लेके आए हैं। वन पार्ट इन द बुक विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट। I think everything was difficult to write because I had to process a lot of things. काफ़ी मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना था, प्रोसेस करना था, बिटरनेस निकालना था। और मैं बार-बार ये सोच रही थी मैं क्यों लिख रही हूँ ऑटोबायोग्राफी? क्या फ़ायदा होगा इससे? एंड आई वांटेड टू टेल द स्टोरी ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी, यू नो, नॉट जस्ट अबाउट द पेन एंड द स्ट्रगल। तो काफ़ी सारी चीज़ों को प्रोसेस करना डिफ़िकल्ट रहा। एंड देन आई टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि जिसने भी मेरे साथ गलत किया है, मेरे मेरे ज़िंदगी के ऊपर 17 बार लाइफ थ्रेटनिंग अटैक्स हो चुके हैं, विलिफिकेशन कैंपेन्स चले हैं मुझे ख़त्म करने के लिए, काफ़ी सारा। जिसने भी मेरे साथ गलत किया, मैं उनका किसी का नाम नहीं लिखूँगी, यू नो, पर जिसने भी मेरे साथ अच्छा किया है, मैं उनका नाम बहुत अच्छे से लिखूँगी। तो काफ़ी सारी चीज़ों को इस तरह से प्रोसेस करके टू लेट गो ऑफ योर बिटरनेस, टू लेट, क्योंकि लिखना मेरे लिए भी कैथारसिस था क्योंकि ना काफ़ी सालों से अंदर जमा हुआ आइटम्स हैं, तो उसको प्रोसेस करके गंदगी निकाल के, यू नो, इन टर्म्स ऑफ बिटरनेस, एंगर, एंड टू राइट फैक्ट्स एज फैक्ट्स। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ये किताब पढ़ी है, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस आपने कितने मैटर ऑफ फैक्ट लिखा है काफ़ी सारी चीज़ें। बट दैट इज़ व्हाट आई एम, यू नो, देयर इज़ नो मसाला इनटू, जो हुआ है सो हुआ है यार। उसको पकड़ के उसमें कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स देके हमें उससे क्या सीखा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्या हुआ है, यू नो। What's happened is happened, you know, and it could be an attack on your life, it could be a kind of, you know, negativity, and it's not so much important to understand how and whys of that negativity, as much as it is important to understand what you take from that negativity to the next level. So वो पूरा प्रोसेसिंग करना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इनफैक्ट माई बॉडी रेसिस्टेड इट। एक ऐसा मुकाम भी आया ये 13 दिन में जहाँ पे मेरी बॉडी ने जवाब दे दिया कि नहीं करना अब। एंड आई स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस एंड इस तरह का बहुत सारा, एक पूरा 6-7 घंटे मेरे चले गए उसमें। एंड देन आई वॉज क्लेंस्ड, यू नो, एंड देन आई कुड। सो it's a very it's a book which has a lot of thrill, but more than thrill, it has got a lot of light. So what is that one or two takeaways which you would want ke before they start you know reading the book कि ये आपको पक्का इस किताब में डेफिनेटली मिलने वाला है, one or two takeaways? काफ़ी सारे हैं। मी एज अ रोमांटिक पर्सन, अच्छा, मेरी रोमांस की कहानी है इसमें। वाह, मी एज अ वेरी पेटी पर्सन, जो बहुत ओछी और अच्छा, छोटी सोच समझ कर सकता है। मी एंड माई ईगो, मी एंड माई एक्सेंट्रिसिटीज़। मैं, बहुत सारे लोग 13-14 साल की उम्र में मिल्टन बून्स पढ़ते हैं, रोमांटिक नॉवेल्स।
मैं 52 साल की उम्र में अभी भी वही पढ़ रही हूँ ओके। और मतलब डिवोटेडली, हम्म, डेडिकेटेडली, right. तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पर इसमें सबसे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं साथ लेके जाती हूँ कि मेरा स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी और परमात्मा के साथ मेरा जो रिश्ता रहा है। इनफैक्ट द फर्स्ट चैप्टर इज़ द मोस्ट interesting chapter where the title of the chapter is When I Wanted to Kill God, you know. So it's also a spiritual journey of understanding God and God experiences and things. So काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक टेक अवे नहीं 100 टेक अवेज हैं, Wow. पर पढ़ने से ही आपको पता चलेगा। It is डेफिनेटली। not there in the cover. तो किताब आपको डेफिनेटली पढ़नी है सुनीता की आई एम व्हाट आई एम एंड दिस मेमोir इज अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस ऑफ 699 मेरे हाथ में आ चुकी है इट्स ऑटोग्राफ्ड कॉपी बट आप मेरी तरह इतने खुशकिस्मत नहीं है यू जस्ट गो एंड बाय दिस बुक एंड हो सकता है कि कभी ये किसी ऐसे बुक स्टोर में आपको सुनीता जी मिल जाए जहाँ पर ये किताब आपके हाथ में तो फिर आप भी ऑटोग्राफ करवा सकते हैं थैंक यू वेरी मच सुनीता इट वाज लवली लवली मीटिंग यू एंड आई एम इक्वली थ्रिल्ड ये किताब शायद 13 दिन आपको लगे लिखने में मुझे शायद 3 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में क्योंकि ये डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट आई एम गोइंग टू रीड in the next coming years. Thank Thank you you. very much. Yeah.